Hello everyone, I am Dr. Ashish Khan Chaudhary. Today I started second module, first lecture, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक्स में हम ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्राइबल एंटरप्रेन्योर लेंगे. We know that an entrepreneur is someone who take the initiative to create a new business venture is known entrepreneur, and entrepreneurship refer to the process of creating and managing a new business venture to achieve financial success and make a positive impact on society. दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. It means the concept of entrepreneurship is not new, but it has been the public attention and interest for their development of the present picture of the country, for improving the skills and development of the youth appropriate with the help of the appropriate policies and practices by the government can play a very significant role. It means tribal entrepreneurship is an important factor for the society. In this lecture, we cover entrepreneurship related planning of new venture, analyzing the entrepreneurial approach, important of entrepreneurship economics, tribal entrepreneurship, program for developing tribal entrepreneurship, challenges and opportunity in tribal entrepreneurship, and also focus on the important stories or case studies related to ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप. ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे और एक समराइज रूप में बताने का शुरुआत कर रहे हैं. फर्स्ट, व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योरशिप इज फोकस ऑन creating a business that can sustain innovation. It includes the process necessary to support over the long term. Entrepreneurship is focused on creating and managing a successful business, and it is also related for the long term management and long term growth of the business. In other sides, entrepreneurs are known for their ability to innovate and develop new product or service. Entrepreneur important person होता है क्योंकि वो इनोवेट करता है, एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या मार्केट में सर्विस देने के लिए इनोवेशन करता है. इट मीन्स दे प्राइमरी फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू आइडियाज एंड ब्रिंगिंग देम टू द मार्केट. एंटरप्रेन्योर्स आल्सो फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टर्निंग देम इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स. दे हैव ए focus on the initial creation of a business. Everything is depend on the entrepreneur's motivational activity. The tribal entrepreneurship is away from the technical education because in tribal entrepreneurship, indigenous persons are away from the educational technical education. जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप है वो सोसाइटी से दूर रहता है क्योंकि वो अपने ओन स्किल को, ओन नॉलेज को अपने ही तक सीमित रखता है. बट ट्राइबल एंटरप्रेन्योर प्रयास करता है कि उस स्किल्स को, उस टेक्नोलॉजी को अपने इंटरप्राइज में लाए और मेन सोसाइटी के साथ अटैच करे. हम सभी जानते हैं
कि जनजातीय उद्यमी या ट्राइबल एंटरप्रेन्योर के पास बिजनेस से रिलेटेड पर्याप्त ज्ञान या टेक्निक नहीं होता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास कोई व्यावसायिक ज्ञान नहीं होता है या उन्हें कोई प्रबंधन से संबंधित शिक्षा नहीं प्राप्त होती है। लेकिन उनके एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में सुधार की बहुत अधिक ज़रूरत है। आदिवासी एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो उसके नेचर, उसके फीचर्स और उसके स्पेशल एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है, क्योंकि जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो स्वदेशी या आदिवासियों के समूह के बीच में रहने वाले प्रोडक्ट को, कल्चरल हेरिटेज को, सोशल इवेंट्स को, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को या एनवायरमेंटल रिलेटेड टेक्निक्स को सपोर्ट करता है। और ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप है जो अपने समाज में कैसे काम करना है और उस काम के थ्रू कैसे कंट्रीब्यूशन दे के अपने सोसाइटी को मजबूत करना है, ये ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है। देयर आर द लॉट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज इट इज आल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी, it is also generate new business, it is also indicate new innovation, it is also lead to better standards of living, it is also support research and development, it is also promote community development, and it is also increase different type productivity, etc. Planning of new venture. If you interested in entrepreneurship, firstly plan for the few things. अगर आपको एक नया बिजनेस चालू करना है, न्यू वेंचर्स में इंटर करना है, तो उसके लिए आपको कुछ आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। बिकॉज आइडेंटिफाई ए बिजनेस आइडिया बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, स्किल्स एंड मार्केट needs, and it is your responsibility to understand your target market, customers and competitors. Try to analyze the industry needs, market size and potential opportunity in available your areas. For the new ventures, formulate a business model, because how will you create, deliver or capture value, how you collect finance, how you advertise for the employee, which types employees required for your organization. So it is entrepreneur's responsibility to formulate a business model for your business. SWOT analysis, it is a also important factor, because with the help of the SWOT analysis, evaluate your venture strength, weakness, opportunity and threat. With the help of this analysis to inform your strategy for the potential risk and other challenges. Develop a strategic marketing plan. It is entrepreneur's responsibility to develop a strategic marketing plan for the new ventures. Create a personal plan. Which type of employee important for your organization, for the recruitment, for the selection, for the personal training, for the which type facilities provided your employees, which type training provided to employees. This type activity created in personal plan. Last is very important point, prepare a financial plan, because with the help of the financial plan, entrepreneurs plan operational plan, team building, risk management, etc. Because everything is depend on financial plan. Here is a important point. Remember that planning is a interactive process,
and adjustment may be necessary as you gain more information and experience in the market. So planning is futuristic way that is helpful for the planning of new ventures. Next is analyzing entrepreneurial approach. It means analyzing entrepreneurial approach is a critical step in the process of starting a new venture. This approach evaluating potential business ideas to determining their feasibility, market potential and overall visibility. These are the important points which are helpful for the entrepreneurial approach, such as identify a problem or needs. For the starting up a business, it is entrepreneur's responsibility identifying a problem or need in the market. It is entrepreneur's responsibility to go in the market and analyze the market skills and which type resource are available in the market. It is entrepreneur's responsibility to analyze the competitors, to analyze the legal and regulatory considerations, because legal and regulatory consideration is important part for the entrepreneurial approach. Risk management. Risk management is also important point because identify and assess potential risks associated with the ventures. ये जो होता है रिस्क मैनेजमेंट, ये आइडेंटिफाई करता है which type risk are involved in this ventures, and it is also developed a strategy to new ventures. Network and industry connection. It is a also important part because with the networking and industry connection, you cannot survive in the market. आपको मार्केट में रहने के लिए मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा. Importance of एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक्स. एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जॉब क्रिएशन करता है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, ये कैपिटल फॉर्मेशन का एक बेस्ट ऑप्शन है, साथ ही साथ ये इकोनॉमिक्स को भी हेल्प करता है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाता है और जो इनोवेटर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको भी हेल्प करता है. समराइज में हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ए ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, competitiveness and overall social well-being. It means entrepreneurial ecosystem is essential for fostering and dynamic economy. Next is tribal entrepreneurship. Tribal entrepreneurship refers to the quality, features and unique element that define and shape entrepreneurial activities within indigenous communities or tribal communities. It means there are some important points, that is unique culture, social, economical and environmental. These points are contribute influencing how entrepreneurs operate and contribute देयर सोसाइटीज. ये जो 4 पॉइंट्स हैं, यूनिक कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, ये एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप अपने नॉलेज को, अपने ट्रेडिशनल कल्चर को, प्रैक्टिसेज को और वैल्यू को और कल्चरल हेरिटेज को मेन स्ट्रीम के साथ
जोड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकें। These are the following features, those are related to the tribal entrepreneurship. Frequently, it is designed to contribute to local economic development, social well-being, and it is also protect the community value. हम सभी जानते हैं कि अगर ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे तो ये तीनों चीज़ें लोकल मार्केट से बढ़ते हुए ग्लोबल मार्केट से अटैच हो जाएंगी। ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट द इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो ह्यूमन को भी प्रमोट करता है और अपने नेचर्स को भी प्रमोट करता है। दिस वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस business decision, promoting eco-friendly practices and protect their traditional belief। अगर ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो रहा है तो उसके हेल्प से हम ये तीनों को भी प्रमोट कर सकते हैं। बिजनेस डिसीजंस, प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल बिलीफ, ये तीनों प्रोडक्ट होंगे। वन इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज होलिस्टिक वेल-बीइंग। जनजातीय एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम प्रमोट करेंगे तो ये स्वदेशी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने का प्रयास करेंगे और जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी बोलता है। इट मीन्स ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्राइबल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, इन सभी को सहयोग करेगा। जनजातीय उद्यमिता के निर्यात आयात में स्वदेशी या जनजातीय समुदायों के भीतर विकसित प्रोडक्ट अगर आ रहे हैं तो उसको हम लोकल मार्केट में भी और विदेश के मार्केट में भी दोनों जगह उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इस प्रकार का कार्य करने से हमको ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स का कल्चरल हेरिटेज है उसको बचाया जा सकता है। प्रमोशन फॉर द डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप, which types programs provided by or developed by government that are helpful for the tribal entrepreneurship। गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाया जाए जिसके द्वारा ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। इसके लिए उसने स्पेशल सेंटर असिस्टेंस एंड ग्रांट प्रोवाइड किया है जिसका प्रोटेक्शन आर्टिकल 275 सबसेक्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल पावर देता है, जो ये बताता है कि अगर ट्राइब्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई ग्रांट सैंक्शन किया गया है तो वो उन्हीं को ही दिया जाएगा। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे पुणे में है, मुंबई में है और भी बहुत सारे छोटे छोटे जगह हैं जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और ट्राइबल से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटी का एनालिसिस करते हैं, जो कि बताते हैं कि कैसे हम ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकें। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए स्पेशल हॉस्टल बनाए गए हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ट्राइबल एरिया में बनाया गया है। साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो लो लिटरेसी है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम लाई है जिसके द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के गर्ल्स और बॉयज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग डेवलपमेंट या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट ट्राइब्स एरिया में रहने वाले सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स के द्वारा ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप में अटैच करना चाहती है जिससे कि वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें। देयर आर द लॉट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप program, such as it is helpful for the
economic environment by providing tribal members with the resource and support they need to start and grow their business. The program will contribute to the economic empowerment of tribal communities. These programs also create job creation because tribal entrepreneurship has the potential energy to create job and stimulate economic growth in tribal areas. It is also reducing unemployment and poverty, and it is also these type programs are helpful for the cultural heritage by integrating traditional knowledge and practices into modern business venture. The program will help preserve and promote tribal entrepreneurship and tribal cultural heritage, and it is also helpful for the community development because successful tribal entrepreneurs can become role model and leaders in their communities. It is also inspired youth who was related to tribes. इस तरह हम कह सकते हैं कि उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए जो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया है ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इनके माध्यम से हम ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को एक शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस इन ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स, नो डाउट अगर कोई प्रोग्राम करने से कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल, क्योंकि जो यहाँ से फंड मिलता है वो फंड ट्राइबल सोसाइटी को देखते हुए या ट्राइबल सोसाइटी में ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप में जो प्रॉब्लम है उनको देखते हुए वो फंड बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी, ट्राइबल एरियाज बहुत सारे जियोग्राफिकल आइसोलेशन में हैं जहाँ पर आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता है या वहाँ पे डेवलपमेंट करने में अभी समय लगेगा, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आती है जिसके कारण हर जगह ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम हम सब नहीं चालू कर सकते हैं। एजुकेशन एंड स्किल गैप्स, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ड्यू टू द लैक ऑफ द geographical isolation. These problem happens. We can not provided the different types training to youth and other tribe peoples. Regulatory and legal challenge due to the region of the education. वहाँ की सोसाइटी के लोग, वहाँ के पब्लिक, वहाँ के यूथ, उनको कौन सी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कौन सी फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, क्या उनके लिए रेगुलेशन है, क्या उनके लिए लीगल प्रोसीजर है, इस टाइप की चीज़ें उस एरिया में रहने वाले लोगों को नहीं पता चल पाता है, जिसके कारण वो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप के बेनिफिट को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। मार्केट एक्सेस एंड कंपटीशन, मार्केट एक्सेस एंड कंपटीशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आइसोलेशन में रहने के कारण वो मेन स्ट्रीम से जुड़ना नहीं चाहते हैं या अपने आप को समझते हैं कि हम इनके बराबर नहीं हैं, जिससे कि वो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जानकारियों को नहीं ले पाते हैं। अपॉर्चुनिटी इन ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, फिर भी ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम इस एंटरप्रेन्योरशिप को अडॉप्ट करके सभी लोगों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़कर एक न्यू मैसेज सोसाइटी को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कल्चर प्रिजर्वेशन एंड यूनिक फीलिंग। ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप कैन leverage their cultural heritage and traditional knowledge to create unique product and services that are very popular in the market. Government support and initiative. Government of India is also provided different types supports and different type initiative for the
tribal entrepreneurship. In previous PPT also mentioned different types programs and schemes. Those are helpful for the tribal entrepreneurship, collaborative partnership and networking. It is an important point. Tribal entrepreneurship, best example for the Red Bull, that is collaborative partnership entrepreneurship example. It is very helpful for the tribal entrepreneurship from other societies because tribal business are helpful for the government agencies, helpful for the NGO, helpful for the mainstream businessmen. And last is sustainable impact and community development. ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो सस्टेनेबिलिटी की बात करता है और ये बताता है कि हम सस्टेनेबल इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप की चुनौतियां हैं उनको अगर हम दूर कर दें तो सफल और प्रभावशाली ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग मेन स्ट्रीम के साथ जुड़कर इस सोसाइटी को एक एम्पावर्ड रूप में बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट स्टार्टअप रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप इन कमिंग लेक्चर बी नोन आल्सो तेंजिंग बोडोसा, आल्सो मेधालेखा, उड़ीसा की महिलाएं, अरण्या, EAGL, ALC India, Last Forest and Gothram. These are the 8 important startups. Those are very popular in tribal entrepreneurship. हम कह सकते हैं कि जैसे तेंजिंग बोडोसा हैं जिन्होंने दुनिया का पहला हाथी अनुकूल टी इंटरप्राइज का कंस्ट्रक्शन किया है जिसमें वो चाय का खेती भी करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर बोडोसा फार्म उसको कहते हैं जहाँ पे उस एरिया के हाथी आते हैं, जंगली सुअर आते हैं, हिरन आते हैं, मोर आते हैं जो कि उस फार्म में आते हैं और वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह दोनों चीज़ें हो रही हैं, उनका ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोडक्शन भी हो रहा है, साथ ही साथ सस्टेनेबल को मेंटेन करने के लिए जो जानवर रहना चाहिए उनका नुकसान भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे बोडोसा ने 30,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है। इसी तरह मेधालेखा हैं जिन्होंने बम्बू से रिलेटेड फॉरेस्ट एक्ट का यूटिलाइजेशन करते हुए बहुत ही अच्छा ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल दिया है और उसमें गोंड जनजाति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उसी तरह उड़ीसा की महिलाएं हैं जो कि यूरोप में पत्तल, जिसमें हम सभी लोग खाना खाते हैं, पत्ते का एक प्लेट बनाया जाता है और उसका यूरोप के साथ टाई अप हुआ है जिसमें 3,500 से अधिक महिलाएं मिलकर FSG का ग्रुप बनाती हैं और जर्मन कंपनी लीफ डेमोक्रेसी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट की है और वो बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन के रूप में उस प्रोडक्ट को बढ़ा रही हैं। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। इसी तरह अरंड है, अरंड में इमली से चटनी बनाई जाती है जो कि 85% प्रोडक्ट फ्रूट्स का यूज किया जाता है। उसी तरह EAGL है, EAGL में महिलाओं को गरीबी से लड़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करते हैं। मोस्टली इसमें बकरियों को कैसे पाला जाए इससे रिलेटेड 200 अधिक परिवार इसमें इन्वॉल्व हैं। इसी तरह ALC इंडिया है जहां पे 65,000 से ज़्यादा महिलाएं अटैच हैं और ये हैदराबाद में स्थित बेस्ट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है जो कि डेयरी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। इसी तरह लास्ट फॉरेस्ट इज ए एग्जाम्पल रिलेटेड टू नीलगिरी वेयर 6,500
tribals, those are survive in the help of the last forest entrepreneurship. These are the following important startup, those are very popular in ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमारे सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हुए हमको एक सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अन्य रिक्वायर्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरतों को फुलफिल करता है। धन्यवाद।